مسیح کی اس عید کو ہم مناتے ہیں جسے قیامت المسیح کہتے ہیں۔ قیامت کا مطلب جی اٹھنا ہے، اور قیامت المسیح یسوع مسیح جی اٹھا ہے۔ عید خوشی اور شادمانی کا نام ہے، اور خروج کی کتاب میں عید کا مطلب ہے گواہ ہونا، گواہی دینا، اس خوشی کی گواہی دینا۔ آج پوری دنیا میں عید قیامت المسیح کی خوشی کی بشارت ہو رہی ہے، گواہی دی جا رہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور خدا کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہوا ہے۔ آج ہم خداوند یسوع مسیح کے لب مبارک سے نکلی ہوئی جو اپنی پیشن گوئیاں اپنے بارے میں اس پر بھی غور کریں۔ چاروں اناجیل میں خداوند یسوع مسیح کے ان پیشن گوئیوں کو جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے لب مبارک سے کہیں ان کا بیان کیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے 3 دفعہ یہ پیشن گوئی کی کہ وہ قتل کیا۔ ہم دیکھیں تیسری پیشن گوئی کا ہم دیکھیں جو لوکا رسول کے انجیل اس کا 18 باب 31 سے 34 آیت تک ہے۔ اس پیشن گوئی پر ہم غور کریں۔ لوکا کی انجیل 18 باب 31 سے 34 آیت۔ پھر اس نے ان 12 کو ساتھ لے کر ان سے کہا کہ دیکھو ہم یروشلم کو جاتے ہیں، اور جتنی باتیں نبیوں کی معرفت لکھی گئی ہیں اتنی آدم کے حق میں پوری ہوں گی۔ جتنی باتیں نبیوں نے خداوند یسوع مسیح کے حق میں کہی ہیں وہ پوری ہوں گی۔ یہ صرف جی اٹھنے کی بات، قتل ہونے کی بات، مصلوب ہونے کی بات خداوند نے پوشیدگی میں 3 بار اپنے شاگردوں کو ظاہر کیا، اور جب شمعون کو یہ بات بتائی، شمعون پترس کو اس کے بعد یہ پسند آئی۔ اے خداوند ایسا ہو نہیں سکتا۔ خداوند نے اسے کہا کہ یہ بات کر کے تو نے اس بات کا اظہار کیا ہے، تو دنیاوی طور پر سوچتا ہے، یہ روحانی بات ہے، اور اس کے اندر شیطان سما گیا اور تو مجھے ٹھوکر کھلانا چاہتا ہے۔ اور اسے کہا اے شیطان دور۔ یہاں پر صاف اور واضح طور پر ان نبیوں کی پیشن گوئیوں کو جو خداوند یسوع مسیح کی بابت کہی گئی تھی وہ پوری ہوئی۔ کون کون سی بات؟ جی، کیونکہ وہ غیر قوم والوں کے حوالے کیا جائے گا۔ وہ غیر قوموں کے حوالے کیا جائے گا، رومن اسٹیٹ کے حوالے کیا جائے۔ کس نے کیا؟ فقی فریسیوں نے اسے غیر قوموں کے حوالے کیا۔ جی، اور لوگ اس کو ٹھٹھوں میں اڑائیں گے۔ دیکھیں کتنی کلیئر بات ہے، یہ پیشن گوئی ہے۔ لوگ اسے ٹھٹھوں میں اڑائیں گے اور بے عزت کریں گے، بے عزت کریں گے، اور اس پر تھوکیں گے، اس پر تھوکیں گے۔ دیکھو کتنی کلیئر باتیں خداوند یسوع مسیح نے اپنی بابت کہی۔ جی، اور اس کو کوڑے ماریں گے، کوڑے ماریں گے اور قتل کریں گے، اور قتل کریں گے، اس کو مصلوب کریں گے، اور وہ تیسرے دن جی اٹھے گا، اور وہ تیسرے دن جی جی اٹھے گا۔ لیکن انہوں نے ان میں سے کوئی بات نہ سمجھی۔ ان کو بات یہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ خداوند یسوع مسیح یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح تو بڑی قدرت رکھتے ہیں، فقیر فریسی ڈرتے ہوئے سے بات نہیں کرتے، یہ کیوں کر یہ کہہ رہا ہے۔ جی، اور یہ قول ان پر پوشیدہ رہا، یہ قول، یہ پیشن گوئی ان پر پوشیدہ رہی کہ خداوند یسوع مسیح
वो बेइज्जत करेंगे, ठट्ठो उड़ाएंगे, उसके मुंह में वो मुंह पर थूकेंगे, उसे मसलूब करेंगे और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। और इन बातों का मतलब उनकी समझ में ना आया। और ये बात समझ, और आज इस भेद को समझने के लिए कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान बेइज्जत हुआ है, उसके मुंह में थूका गया है, उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया है, उसकी पसली में भाला लगा है। मेरे चीजों ये सब कुछ इसलिए हुआ किसी एक बेऐब शख्स को जो खुदा का बेटा है उसको कुर्बान होना जरूर था, क्योंकि बगैर खून बहाए माफी नहीं। तमाम दुनिया की माफी खुदावंद यीशु मसीह के कफारा के अंदर देखिए। लूका रसूल के इंजील उसका 24 बाब उसकी 5, 6, 7 आयत को देखिए। इस इक़्तिबास को आप देखिए यहाँ पर लूका रसूल के इंजील 24 बाब 5, 6 और 7 आयत जी। जब वो डर गई और अपने सर जमीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। फरिश्ते ने कहा कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, वो जिंदा है, वो यहाँ नहीं है बल्कि जी उठा है। बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था। देखिए फरिश्ते इनको याद कराते हैं जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था कि जरूर है कि इब्ने आदम गुनहगारों के हाथ में हवाले किया जाए। जरूर है कि इब्ने आदम गुनहगारों के हाथ में हवाले किया जाएगा और मसलूब हो, और वो मसलूब होगा और तीसरे दिन जी उठेगा, और तीसरे दिन जी उठेगा। और हाँ जी, उसकी बातें उन्हें याद आई और ये बातें इन ख़वातीन को याद आई। मेरी चीजों खुदा का फरिश्ता इस भेद को खोलता है। ये अल्लाही बात है, ये दुनियावी या इंसानी बात नहीं है, ये अल्लाही बात है जो पेशन गोई खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बारे में कही। उसको याद कौन करवा रहा है? खुदा का फरिश्ता जो आसमान से उतरा। जब वो उतरा था तो बड़ा भंचाल आया था। जब यह ख़वातीन सबक के अगले दिन यानी इतवार को ये बाहर निकली ताकि खुदावंद यीशु मसीह को देखें और उससे खुशबू और इतर और मुसालजात के साथ उसको मसा करें, उसको माने। ये दस्तूर था उनका। मेरे चीजों खुदा का फरिश्ता उनको याद कराता है। और पहले हमने पेशन गोई में देखा कि ये भेद उनकी समझ में नहीं आया कि ये क्या कहता है, लेकिन अब फरिश्ते ने जब रिपीट किया तो इनको ये बात याद। अब हम आएंगे मुकद्दस मत्ती रसूल के इंजील उसका 28 बाब और उसकी पहली 10 आयत में पूरा वाक्य करामात है। ये वाक्य मत्ती रसूल की इंजील, मरकस रसूल की इंजील, मुकद्दस मत्ती रसूल में 28वें बाब में, मरकस के इंजील में 16वें बाब में, और इसी तौर पर लूका रसूल की इंजील उसके 24वें बाब में, और यूहन्ना रसूल की इंजील और उसके 20वें बाब, वहां पर खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने का इन चारों अनाजील में इन चारों मुक़द्दसीन ने बड़े साफ और वाज़ेह तौर पर इन सारे वाक़यात को कलमबंद किया। अब देखिए मत्ती की इंजील 28 बाब उसकी पहली 2 आयतें पढ़ेंगे, फिर आगे चलेंगे जी। और सबत के बाद हफ्ते के पहले दिन वो पढ़ते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई।
जी। और देखो एक बड़ा भूचाल आया, देखो एक बड़ा भूचाल आया। मरकस की इंजील में हम देखते हैं, वहां पर जब ये खवातीन निकलती हैं तो एक दफा रुकती है, ओ हम तो जा रहे, हमारे लिए पत्थर को कौन लुढ़काएगा? ओ ये तो बड़ी मुश्किल है, ये कैसे हो सकता है? लेकिन फिर वो रवाना हो जाती है। जब वो कब्र के करीब पहुंचती है तो एक बड़ा भूचाल आता है। जब बड़ा भूचाल आता है तो आसमान से बर्फ से पोशाक पहने हुए, बिजली की तरह चमकता रोशन फरिश्ता उतरता है, और जब उतरता है तो वो पत्थर को एक उंगली के इशारे से लुढ़का देता है और उस पर खुद बैठ जाता है। ये तो मुकद्दस मत्ती ने इसको कलमबंद किया। और लूका रसूल भी 24 बाब और 23 बाब के आखिर में इसका यूं जिक्र करता है कि एक बड़ा भूचाल आया, हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, और जब काहिनों ने देखा ये क्या हो गया, और जो हकीकी तौर पर खुदा परस्त काहिन थे वो इस बात से घबरा के कांप रहे थे। क्यों? इसलिए कि उस पर्दा के अंदर पाक तरीन मुकाम है और उधर अहद का संदूक होता था, और वह पाक तरीन मुकाम में साल में एक बार जाते थे। ये थरथरा कर कांपते हुए दूसरे फकीर फरिश्तों को बताया कि हैकल का पर्दा फट गया है, और हैकल का पर्दा पता कितना 2 इंच मोटा था। तारीफ साहब कहते हैं अगर 2 बैल इस तरफ और 2 बैल इस तरफ बांध के जाए और 2 चारों बैले जोर से खींचे तो ये फट नहीं सकता। ये कैसे मुमकिन हो गया? हाँ, खुदावंद का हमने मस्तूर किया। ये भूचाल आया, जमीन थरथरा रही है, लेकिन इस भूचाल से कोई, इस जल्जले से कोई जमीनी कोई नुकसान या इंसानी कोई नुकसान ना हो। ये सिर्फ मैसेज था पैलतुस फलातुस को, ये मैसेज था हेरोदेस बादशाह को, ये मैसेज था सरदार काहिन को, ये मैसेज था फकीर फरिश्तों को, ये मैसेज था उन लोगों को जो कल कहते थे कि तू हमारा बादशाह बन, और आज वो कहते हैं इसको सलीब दे, और उन तमाम के लिए मैसेज था। थरथराई जमीन सुबह के वक्त और फटने से पहले उनको ये मैसेज किया, और सरदार काहिन को भी ये मैसेज किया कि हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया है, और चट्टानें तिड़की, हिल गई, फट गई, कब्रें खुल गई, मुर्दा जिंदा हुए। ये उस वक्त हुआ जब खुदा ने कहा तमाम हुआ, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, और वो मुर्दे कब्र में पड़े रहे जब तक खुदा का लौटा बेटा जीना था। जैसे वो जिंदा होता है, बाहर निकलता है, इसी तरह तमाम मुकद्दसीन निकलते हैं और अपने अपने अजीजों को मिलते हैं। एक तो ये बात, फिर हम ये देखते हैं कि फरिश्ता वहां पर बैठा हुआ है। आगे बढ़े जी। और देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानित थी, उसकी सूरत बिजली की मानित थी, और उसकी पोशाक बर्फ की मानित सफेद थी। उसकी पोशाक किसकी मानित? बर्फ की मानित, बर्फ की मानित। हाँ, बर्फ की मानित सफेद। और उसके डर से निगाहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। जब वो पहरेदार बैठे हुए थे और कब्र को सील करके मोहर लगा दी थी, और पैलतुस फलातुस की मोहर लगी थी, और ये बड़ा जुर्म है कि उसकी मोहर को तोड़ा जाए, लेकिन फरिश्ता ने वो मोहर तोड़ दी, और खुदावंद यीशु मसीह ने मौत के बंधनों को भी तोड़ दिया, कब्र को भी तोड़ दिया, और वो
बाहर निकल आया। और जब बाहर आता है तो फिर आप देखिए, रिश्ता ने औरतों से कहा, तुम न डरो, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो, तुम यीशु को ढूंढती हो, जो मसलूब हुआ था। जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। वो यहाँ नहीं है, कब्र खाली है। और ये जगह देखो, आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था। जहाँ खुदावंद पड़ा था। जब वो देखती है अंदर जाकर, और पतरस भी, हम देखते हैं लूका के रसूल के इंजील में, इसमें भी आखिर में लिखा है, जब पतरस अंदर जाता है उसके साथ दूसरा शागिर्द जाता है, और वहां पर जो खास बात जो मैंने नोट की कि उसका सूती कफन वहां पर पड़ा था, और उसके सर पर जो रुमाल बांधा हुआ था वो कैसे पड़ा था? तय क्यों? इसका मतलब खुदा यीशु मसीह ने उस रुमाल को अपने ऊपर जो बांधा हुआ था खोलकर बड़े एहतमाम के साथ उसको तय किया और तय करके रख दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और ये सूती कफन, काबूल किताब में हम पढ़ते हैं, ये सूती कफन पाकिस्तान का था। ये कपड़ा कहां से गया था? पाकिस्तान से। और पाकिस्तान में से कौन से सूबे से? सूबाए सिंध से। और सूबा सिंध का कौन सा शहर? सियालपुर, जहाँ ग्लेशियर तैयार होता है, वहाँ कपास की बनी होती है। और बेहतरीन महंगा तरीन, आज से 2020 या 21-22 साल पहले ये अर्तमिया के यूसुफ ने इसको खरीद कर अपने पास रखा था। आमीन, हालेलुया। आगे देखें क्या कहता है। और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है। शागिर्दों को इन्फॉर्म करो, जैसे उसने कहा था कि मैं मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठूंगा, और बताओ कि मुर्दों में से जिंदा हो गया है जी। और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है। और अपने कहने के मुताबिक वो तुमसे पहले गलील को जाता है। वहाँ तुम उसे देखोगे, वहां तुम उसको देखोगे। हाँ। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। और वो बड़ी खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ा। खबर देने के लिए दौड़े। ये एजाज औरतों को है। प्रीचिंग, बिशारत, मुर्दों में से जिंदा होने की नवीद खबर, खुशी की खवातीन ने पूछा। और आज भी खवातीन चर्चिस के अंदर सबसे ज्यादा तादाद उनकी है। और अमूमन मैं ये कहता हूं कि आसमान की बादशाही में सबसे बड़ी जो तादाद होगी वो खवातीन की होगी, बेटियों की होगी, माओ की होगी, बहनों की होगी। हालेलुया। और ये जिम्मेदारी आज भी खवातीन के ऊपर है। मेरी सी तो आज का पैगाम भी, तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढते? वो जिंदा, आज हम इसको देखेंगे कि जब वो जमीन पर था वो एक ही विनती करता था। उसे कहा जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मुझ में से खाएगा वो अब तक जिंदा रहे। हालेलुया। इसके अलावा यूहन्ना की अंजील 3:16 में आयत में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए। जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की। आगे लिखा है उस पर सजा का हुक्म नहीं, मैं सजा देने नहीं आया, मैं निजात देने आया, मैं जिंदगी देने आया, मैं जिंदा करने आया। ये बात। आज एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं अमूमन कहता हूं कि नारा क्या लगाते हैं? खुदावंद जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु मेरा है।
आज देखेंगे कि वो खुदा मेरा है या नहीं मेरा। वो मेरा अपना है, वो खुदा मेरा अपना है, और यीशु भी मेरा अपना है। वो मेरा बाप भी अपना है और आपका बाप भी अपना है। ये खूबसूरत वर्ड्स जो है हम देखते हैं, यीशु मसीह जब मुर्दों में से जिंदा हुए, ये तो चली गई, लेकिन मरियम मगदलीनी वहां रोती रही। जब वहां पर रोती रही तो यीशु मसीह उनके सामने आया। उसने बोला क्यों रोती है? उसने उसको क्या जाना कि ये कौन है? मालिक है, ये बागबान। क्यों? तो खुदावंद यीशु मसीह की सूरत कैसी थी? जलाली सूरत, वो अपने जलाल में थे। और उसने उसको कहा कि खुदावंद यीशु मसीह को चुरा कर ले गया। अब देखिए 11 और 12 आयत पढ़े, फिर हम 16-17 पढ़ेंगे जी। यूहन्ना की इंजील 20 बाब 11 और 12 आयत, फिर उसके बाद 16 और 17 आयत जी। जो भी जल्दी निकाल दे जल्दी से। लेकिन मरियम बाहर कब्र पर खड़ी रोती रही। जब रोते रोते झुककर अंदर नजर की तो दो फरिश्तों को सफेद पोशाक पहने, एक को सराहने और दूसरे को पहना वाले पहन की तरफ, जहां यीशु की लाश पड़ी। और जब ये बाहर निकलती है, देखती है, रोती है, तो यीशु मसीह के पास आते हैं। अब पढ़े। उन्होंने उससे कहा, आए औरत तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, इसलिए कि मेरे खुदावंद को उठा ले गए हैं। मेरे खुदावंद को उठा ले गए और मालूम नहीं कि उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वो पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और न पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उससे कहा, आए औरत तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने बागबान समझकर उससे कहा, मियाँ, अगर तूने उसको यहाँ से उठाया हो तो मुझे बता दे। कितनी फिक्र है कि उसे कहाँ रखा है जी, ताकि मैं उसे ले जाऊं। यीशु ने उससे कहा, कैसे बात है, तू बता, ताकि मैं उसको, वो अकेली मरियम और अकेली नहीं खा सकती। लेकिन उसका मोहब्बत, उसका प्यार है यीशु के साथ। क्यों? उसमें से 7 बुद्धुएं यीशु मसीह ने निकाली थी, और उस वक्त से मरियम और लेनी यीशु मसीह की शिकरदा होकर उसके साथ साथ खिदमत करती। ना सिर्फ खिदमत करती, ये रिच वुमेन थी, ये तमाम अखराजात उसके उठाए हुए थे, तमाम जरूरियात को पूरा ये खत्म कर रही थी। तमाम प्रीचिंग के, तमाम खाने, तमाम उठना बैठना, रहना सहना, कपड़ों, सबका इंतजाम इसके जुम्मे था। और ये तड़प रही है, अगर तूने उसे कहीं उठाया, मुझे बता, मैं उसको उठाकर ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर उससे इब्रानी ज़बान में कहा, रबूनी, रबूनी, यानी आए उस्ताद। यीशु ने उससे कहा, मुझे ना छू, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और ये है, जाकर मेरे भाइयों को कह दे कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और एक अपने खुदा। यीशु मसीह कहता है अपने बाप, और आप बैठे हुए जितने राजपाल बैठे हुए तुम्हारी बाप। कितनी बड़ी बात कही है खुदावंद यीशु मसीह ने कि वो मेरा भी बाप है और तेरा, अपने बाप और मेरे सीधो वो हमारा बाप है। क्या कहता है? अपने खुदा और तुम्हारे खुदा, वो खुदाए रब्बुल फाज, वो कदूस पर हक, वो महीद खुदा,
वो यीशु का भी खुदा है और तुम्हारा भी खुदा है, मेरा भी खुदा है। आमीन। ये वो बात है वेद की कि जी उठने के बाद और उसने कब्र और मौत को फतह पाई, उसको शिकस्त दी। शिकस्त देने के बाद उसने ये अथॉरिटी दे दी कि वो बाप मेरा भी है और तुम्हारा भी है, वो खुदा मेरा भी है और तुम्हारा भी है। इसलिए मैं कहता हूं खुदा यीशु जिंदा है और हमारे अंदर रहता है और हम उसका शुक्रगुजार करते हैं। आमीन। कितनी ऐसी बात कौन कह रहा है? खुदा यीशु मेरे से तो वो जिंदा होकर मुझे और आपको जिंदा कर दिया। वो जिंदा होकर मुझे और आपको भी जिंदगी दे दिया, और ऐसी जिंदगी हमेशा की जिंदगी। जो कोई उसके पास आता है वो उसको अवधि जिंदगी देता है, इटर्नल लाइफ, एवरलास्टिंग लाइफ वो हमें देता है, हमेशा की जिंदगी दे देता है। वो हमें जिंदा रखता है, वो हमें जिंदा देखना चाहता है। इस दुनिया में भी हम जिंदा हैं, जो मर भी जाए तो भी जिंदा है। अपने बाप और तुम्हारे बाप, अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूं, के पास ऊपर जाता हूं। वो मुझे आपको भी लेकर जाता अपने बाप के पास, अपने खुदा के पास। वो बाप यीशु का भी है और मेरा भी है, वो खुदा यीशु का भी है और मेरा भी है। वो जब ऊपर जाता है तो हमें भी ऊपर लेकर जाता है, जब तक हम हुए जमीन में जिंदा है और हम आसमान पर भी जिंदा ही रहेंगे। आमीन। हालेलुया। देखिए इसके साथ एक और आयत मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 22 से लेकर 24 में आया। यूहन्ना की इंजील 5 बाब 22 से 24 है। जी। यीशु ने उनके ख्यालों को मालूम करके जवाब में उनसे कहा, तुम अपने दिलों में क्या सोचते हो? क्योंकि बाप किसी की अदालत नहीं करता, बाप किसी की भी अदालत नहीं करता, बाप किसी की भी अदालत नहीं करता, बल्कि उसने अदालत का सारा काम बेटे के सपुर्द किया। उसने सारा काम, अदालत का काम यीशु मसीह और खुदा ने अपने बेटे के सपुर्द कर दिया। आमीन। जी। ताकि सब लोग बेटे की इज्जत करें। वो अदालत अदल उसके पास है, उसके पास बाख्तियार है, ताकि सब लोग बेटे की क्या करे? इज्जत करे। जिस तरह बाप की इज्जत करते हैं, जिस तरह बाप की इज्जत करते हैं उसी तरह बेटे की भी इज्जत करे। जो बेटे की इज्जत नहीं करता वो बाप की जिसने उसे भेजा इज्जत नहीं करता। जो बेटे की इज्जत नहीं करता, जो यीशु की इज्जत नहीं करता, वो बाप की भी इज्जत नहीं करता, वो खुदा की भी इज्जत नहीं करता जिसको उसने भेजा है। ये खुदा खुद तालीम दे रहे हैं। जी। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मेरा कलाम सुनता, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन, और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है। हमेशा की जिंदगी उसकी। जो मेरे कलाम को सुनता और उस पर अमल करता, हमेशा की जिंदगी उसकी है, और मैं उसे मौत से निकाल कर जिंदगी में दाखिल करता हूँ। आमीन। पढ़े। और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल होगा। जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने कब्र और मौत को फतह पाई और जिंदा आसमान पर अपने बाप के पास चलेगा, उसी तरह उसने कहा जो मेरे कलाम सुनता और उस पर अमल करता है उस पर सजा का हुक्म नहीं, और वो क्या होगा? मौत से निकलकर जिंदगी में। मेरे जीतो कलाम को सुनना, कलाम को पढ़ना, कलाम पर अमल करना, उसका यकीन करना, उसके मुताबिक चलना, तो फिर मेरे आप पर सजा का हुक्म नहीं है, बल्कि खुदा का ये वादा है, उसका ये कौल है कि तुमको मौत से निकालकर जिंदगी में दाखिल कर देगा। आमीन। आज जितने ईमान से जिंदा है, खुदा उन्हें कहां दाखिल कर रहा है? जिंदगी में।
پہلا پترس کا خط ہے، اس کا 2 باب ہے، اس کی 24ویں آیت میں مشہور آیت ہے، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وہ آپ ہمارے گناہوں کو لے کر صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جیے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ راست باز ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیتے رہیں۔ آمین، ہاللیلویا۔ اور اس نے ہمیں موت سے نکال کر زندگی میں وہ زندہ، کتنا بڑا وعدہ مسیحی لوگوں کے لیے، یہ چھوٹا وعدہ ہے۔ وہاں پر کہتا ہے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا، اور اس میں سزا کا حکم نہیں ہے، میں ہمیں نجات دے دیا۔ یہاں پر یہ کہتا ہے کلام کو سننا کتنا ضروری ہے، کلام کو پڑھنا کتنا ضروری ہے، کتنا ضروری ہے اس پر آپ عمل کریں تاکہ ہم اس ابدی سزا سے بچے، کیونکہ عدالت کا سارا اختیار کس کو دے دیا ہے؟ یسوع مسیح کو دے دیا ہے۔ اور ہم یسوع کی عزت کریں، جب ہم یسوع کی عزت کریں گے تو خدا کی بھی عزت ہوگی۔ ہاللیلویا۔ اب خدا ہی چاہتا ہے کہ ہم اب تک زندہ رہیں۔ یہ کیا بھی بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ اشارہ بازی میں شامل نہیں ہو، کئی بہانے کرتے، لیکن میری چیز اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اپنے آپ کو کلام سے دھو کر پاک روح سے غسل لے کر اپنے خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں آ جائے تاکہ ہمارے گناہ وہ دھل جائے۔ رومیو 6 باب اس کی 23 میں ہے، گناہ کی مزدوری موت اور خدا کی بخشش ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ہم گناہ کو چھوڑ کر جس کے لیے رات دن مزدوری کرتے ہیں، اس مزدوری کو چھوڑ دیں جو ہم گناہ کے لیے کرتے ہیں، بلکہ ہم خدا کے قدموں میں آ جائیں جو اس کی بخشش ہے، وہ ہمیں ہمارے گناہوں سے معاف کرتا ہے۔ اس کی بخشش کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ہاللیلویا۔ ہم اشارہ بازی کے اس حصے کو دیکھیں جو خداوند نے اس دنیا میں رہتے ہوئے کہی، آخری فصح بھی کھائی، وہ ترتیب بھی بتائی، لیکن اس سے پہلے یوحنا رسول نے اشارہ بندی کی پوری ترتیب بتائی۔ اس کا خون اور گوشت، جو میرا خون پیتا ہے وہ مجھے میں کیا رہتا ہے؟ قائم رہتا ہے۔ جو میرا بدن، جو میرا گوشت کھاتا ہے وہ اب تک زندہ ہے۔ قدر یوحنا رسول کی انجیل اس کے 6 باب اس کی 57 اور 58 ہے، یا آپ سب کو زبانی جا جی، جو میرا گوشت کھاتا جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے، میرا خون پیتا ہے، وہ مجھ میں قائم رہتا ہے، وہ مجھ میں قائم رہتا ہے، اور میں اس میں، اور میں اس میں۔ جس طرح زندہ باپ نے مجھے بھیجا، یہ سننے غور سے، اور میں باپ کے سبب، غور سے سنیں، وہاں پہ کیا کہتا ہے؟ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ، اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں۔ میں ایک مقام پر سے خود کہا دینا کہ جیو اس کے 4 باب میں تمہارا دل نہ کرے اور تم مجھ پر نہ کرو۔ میں باپ کے پاس جاتا ہوں۔ کس کے پاس جاتا ہوں؟ باپ کے پاس، تاکہ تمہارے لیے کیا کروں؟ جگہ۔ میرے باپ کے پاس بہت سے مقام، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہتا۔ یہ باپ ہمارا اپنا باپ، وہ یسوع کا باپ، میرا اور آپ کا باپ، وہ یسوع کا خدا، میرا اور آپ کا خدا مجھے ہمیشہ کے لیے زندہ رکھے۔
زندہ کر دیا زمین پر بھی, اور ہم مریں گے نہیں بلکہ سوئیں گے. ہاں جی پڑھیے. جس طرح زندہ باپ نے مجھے بھیجا. جس طرح زندہ باپ, کیسے زندہ باپ, زندہ باپ, اپنا باپ, اپنا خدا, تمہارا باپ, تمہارا خدا. جس طرح باپ نے مجھے, زندہ باپ نے مجھے زندہ باپ نے مجھے بھیجا, اور میں باپ کے سبب سے زندہ ہوں. میں باپ کے سبب سے زندہ ہوں. اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھائے گا, وہ بھی جو مجھے کھائے گا, جو اشارہ بازی میں شامل ہوگا, میرے سبب سے زندہ ہے. میرے سبب سے زندہ ہے. ہاللیلویا. وہ زندہ باپ جس نے مجھ کو بھیجا, میں اس کے سبب سے زندہ ہوں, اور جو مجھے کھائے گا وہ میرے سبب سے. بات ہے سبب. عموماً آپ محاورہ ہوتا ہے نا, وہ اپنے سا کا سبب لا دیتا ہے نا, کم سا نہ ہوتا. تو یہ سبب کو دیکھیے, زندہ خدا نے مجھے بھیجا, میں خدا کے سبب سے کیا ہوں, زندہ ہوں, اور جو یہ روٹی کھائے گا میرے سبب سے زندہ. وہ زندہ ہو گیا ہے, مجھے راحت کو بھی زندہ کر دیا ہے. وہ قبر سے نکل آیا ہے, اور میں اور آپ جب خدا میں سوئیں گے تو قبریں کھل جائے گی اور ہم زندہ ہو جائیں گے. آگے 58. جو روٹی آسمان سے اتری یہی ہے. جو روٹی جو اتری ہے آسمان سے وہ یہی ہے. باپ دادا کی طرح نہیں کھایا اور مر گئے. ایسا نہیں ہے کہ تمہارے باپ دادا نے وہ من کھایا اور مر گئے, لیکن جو مجھ میں سے کھائے گا, میں زندگی کی روٹی ہوں, تو اب تک زندہ رہے گا. جو یہ روٹی کھائے گا وہ اب تک زندہ رہے گا. جو یہ روٹی کھائے گا اب تک زندہ ہو. خدا یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہو کر مجھے آپ کو بھی زندہ کر دیا. خدا یسوع مسیح نے موت کو فتح پا کر موت کے اختیار کو اور اس سے چھین لیا. اب مجھ پر آپ پر موت کا کوئی اختیار نہیں. ابلیس جو دنیا کو سزا دیتا رہا, جب ہم ہمیشہ کی زندگی کے اندر ایٹرنل لائف میں آ جاتے ہیں, ایور لاسٹنگ لائف میں آ جاتے ہیں, تو پھر ہم زندہ ہمیشہ کے لیے رہتے ہیں. تم زندہ کو مردوں میں, اور آج ہمارے ارد گرد بہت سارے مردہ لوگ ہیں, لیکن میں اور آپ زندہ ہیں. ہمیں یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے, وہ زندہ ہے, اب تک زندہ رہے گا. آج کا پیغام جی کہ جیسے وہ زندہ ہے, میں اور آپ بھی زندہ رہیں گے, اب تک زندہ ہے. میرے عزیزو, اشارہ بانی میں شامل ہونا کتنی بڑی بات, کتنی عظیم بات, کہ جو اس کا خون پیتا, جو اس کی روٹی کھاتا, جو اس کا گوشت کھاتا, اور اس میں جو قائم رہتا. بات ہے قائم رہنے کی. کس کی بات ہے؟ قائم رہنے کی, تاکہ ہم اب تک کیا رہیں, زندہ رہیں. آج مجھے اور آپ کو قائم رہنے کی ضرورت ہے, اور قائم کس میں رہنا ہے؟ یسوع مسیح میں قائم رہنا ہے. تب میں اور آپ کہہ سکتے ہیں یسوع کے ساتھ کہ وہ میرا اپنا خدا ہے, وہ میرا اپنا یسوع ہے. آمین. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. میرے عزیزو, اشارہ بازی میں شرکت کریں اور اب تک زندہ رہیں. ایک بات, خدا کے کلام کو سنیں, خدا کے کلام کو پڑھیں, اور اس پر کیا کریں, عمل کریں. تو تم پر سزا کا حکم نہیں ہے, بلکہ خدا ہمیں موت سے نکال کر زندگی میں. آج اس نے موت کو فتح پا کر پوری دنیا کو جو اس پر ایمان رکھتے ہیں ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا. ہم زندہ قوم ہیں. ہم کون سی قوم ہیں؟ یہ تو کہتے ہیں ہم زندہ قوم ہیں, پائیدہ قوم ہیں, لیکن مسیح لوگ کیا ہیں؟ زندہ قوم ہے. کیوں؟ ان کا خدا زندہ خدا ہے, وہ ہمارا اپنا خدا ہے.
हमारा यीशु जिंदा आसमान पर खुदा के दाहिने हाथ बैठा है। क्यों? इसलिए कि वो हमारा अपना यीशु है। जब वो हमारा अपना यीशु है, जब वो जिंदा है तो वो अपने बच्चों को भी जिंदा रखता है। आमीन। जिस दिन उसको बेचा, मैं उसके स्वरूप से जिंदा हूँ। जो मेरा गोश्त खाता है मेरे स्वरूप से जिंदा है और अब तक जिंदा है। खुदा आपको हमेशा हमेशा की जिंदगी दा करे और आप खुदा में जब सो जाए या मैं सो जाऊँ तो हम अब तक क्या रहेंगे? जिंदा रहेंगे। हालेलुया। आप सबको ईद क़यामत मसीह मुबारक हो। रेज़रेक्शन डे आप सबको मुबारक हो। खुदा आपकी साथ। अजीजों, हम अपनी आंखें बंद करेंगे। हमने खुदा के कलाम को सुना। यीशु